بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آپ کا میزبان اعجاز ڈوگر حاضر خدمت ہے. یوں تو لاہور شہر کے اندر ہم یہی سنتے ہیں کہ ٹریفک کی روانی کے لیے جو ہے یہاں پہ سٹی ٹریفک پولیس جو ہے وارڈنس یہی ٹریفک کی بحالی کے لیے کام کر رہے ہیں. لیکن یہاں پہ اور بھی بہت سارے ادارے جو ہے ٹریفک کو رواں دواں رکھنے کے لیے کام کریں، کیونکہ لاہور جتنی آبادی بڑھتی جا رہی ہے، روڈز جو ہے وہ سکڑتے جا رہے ہیں، ٹریفک بڑھتی جا رہی ہے، آبادی بڑھتی جا رہی ہے، تو ڈیفینیٹلی اس کے لیے روڈز، میپ، وہ ساری چیزیں بنانا بڑا ضروری ہے. تو حکومت جو ہے، حکومت پنجاب بھی لاہور میں اس کے اوپر کام کرنے کے لیے بہت سارے محکمے جو ہے ان کو ٹاسک دیا ہوتا ہے. اسی طرح دیکھیں ایل ڈی اے جو ہے اس کا بڑا اہم رول ہے. وہ الگ چیز ہے کہ پازیٹیو نیگیٹو پہلو ہر ایل ڈی اے کے اوپر بہت سارے ایلیگیشن بھی لگائے جاتے ہیں، وہ ایک الگ میٹر ہے. لیکن ایل ڈی اے بہرحال ایک ایسا ادارہ ہے جو لاہور کو خوبصورت بنانے کے لیے، لاہور کے بلڈنگز، روڈز، اوور آل اس کا بڑا اہم کردار ہے. تو اس کے ہی ایک ادارہ، ایک ایجنسی ٹیپا کا بڑا رول ہے روڈز کے اندر، ٹریفک کی بحالی کے اندر، برج، اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں. اور سب کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میٹرو لاہور جو یہاں پہ چلی وہ بھی ٹیپا کا ہی کام ہے. ٹیپا نے ہی میٹرو بس سروس جو ہے اس کا آغاز کیا. تو اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں اس تمام چیزوں کے اوپر بتانے کے لیے، بات کرنے کے لیے چیف انجینئر ٹیپا اقرار حسین قریشی صاحب. اقرار حسین قریشی صاحب اس سے پہلے ایل ڈی اے میں بھی سروسز فراہم کر چکے ہیں. وہ پوچھتے ہیں ان سے. بہت شکریہ جی قریشی صاحب وقت دینے کا. سب سے پہلے تو مجھے ٹیپا بیسیکلی کیا ہے، اس کا تعارف کیا ہے، میرے ناظرین کو ذرا تھوڑا سا بتا دیں کہ ٹیپا تو سنیں، ٹیپا ہے کیا چیز؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو جی آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے، آپ نے موقع دیا کہ میں ٹیپا کو ذرا عوام کے لیے جو ہے ٹیپا کو بتاؤں کہ ٹیپا کیا ہے. دیکھیں ٹیپا ایک ایجنسی ہے ایل ڈی اے کی. اب ٹیپا کا سے بنتا کیا ہے؟ ٹریفک انجینئرنگ اور ٹرانسپورٹ پلاننگ ایجنسی. اچھا، اب ٹیپا میں جو ہمارا یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے یہ بنا تھا 1987 میں. اس کے بعد سے الحمدللہ ٹیپا نے بہت اچھے کام کیے ٹریفک کے ریزولوشن کے لیے، ڈفرنٹ پروجیکٹس لانچ کیے، ڈفرنٹ جو ہے سلوشن نکالے. اور آج بھی ہم بڑی روانی کے ساتھ جو ہے ٹریفک کی روانی کے لیے بڑی محنت کر رہے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ جہاں جہاں کوئی کنجیشن ہوتا ہے اس کو ریزالو کریں. اچھا، اب اس میں ڈوگر صاحب ایسا ہے کہ جو ٹیپا ہے میں سمجھتا ہوں یہ گورنمنٹ کا ایک جو وائٹل آرگن کے طور پہ ادارہ ہے، اور اس کی جو خدمات ہیں وہ یوں سمجھیں کہ ایک طرف جہاں ٹریفک پولیس انفورس کر رہی ہوتی ہے ٹریفک کی روانی کے لیے کمیوٹرز کو، دوسری طرف جو ٹیپا جو ہے وہ ٹریفک پولیس کے ساتھ مل کے جو ہے وقتاً فوقتاً جو ہے ہر جگہ کے، ہر چوک کے، ہر کونا خدرا جو بھی جہاں پہ کنجیشن ہوتا ہے وہاں مل کے جو اس کا سلوشن نکالتے ہیں. اچھا، اب اس میں جو انجینئرنگ سلوشن نکالتے ہیں، یعنی بیسیکلی آپ یوں کہیں کہ جو ہمارا جو ادارہ ہے یہ ٹریفک کنجیشن کی ریزولوشن کے لیے انجینئرنگ سلوشن نکالنے والا ادارہ. فار ایگزامپل یہاں سگنل ہونا چاہیے، یہاں پہ وہ ریفلیکٹر لگا کے نکالنا چاہیے، یہاں پہ کٹ ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، یہاں انڈر پاس ہونا چاہیے، برج ہونا چاہیے، مطلب اس کی بات کریں. جی ایسے ہی ایسے. اب اس میں یہ ہے ہم جو انٹرونشنز جو سجیسٹ کرتے ہیں، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اکنومیکلی جو ہم انٹرونشن سجیسٹ کریں، جہاں پہ فلائی اوور کی ضرورت نہیں ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایٹ گریڈ یعنی زمین پہ ہی اس کا سلوشن نکال لیں، سگنل لگا کے نکال لیں، یا جو ایٹ گریڈ اس کی جیومیٹری کو امپروو کر کے نکال لیں تاکہ تھوڑے پیسوں میں اچھا کام ہو جائے. اب جو ہمارے جو انٹرونشنز ہوتی ہے جو ہم سجیسٹ کرتے ہیں وہ کچھ 3 طرح کے انٹرونشنز ہیں. ایک تو ہے مائنر انٹرونشنز. مائنر انٹرونشنز یہ ہے کہ لیٹ سے ایک چوک ہے، وہاں پہ آبزرو کیا جا رہا ہے، وارڈن بھی آبزرو کرتا ہے، ہم بھی جا کے دیکھتے ہیں کہ یہ ایک چھوٹی سی ہرڈل ہے، اپنے میڈین آگے ایکسٹینڈ ہوا پڑا ہے اس کو چھوٹا کر دیں، یا کہیں پہ یو ٹرن غلط بنا ہوا ہے اس کو وہاں سے بند کر دیں، آگے دے دیں. اس طرح چھوٹے چھوٹے کام ہیں. وہ جو چھوٹی انٹرونشنز ہیں ان سے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اکنومیکل سلوشن نکال کے ہم اس کو امپلیمنٹ کرواتے ہیں، خود کرتے ہیں. دوسرا ہوتا ہے شارٹ ٹرم سلوشن. شارٹ ٹرم جو ہے وہ سلوشن ہوتے ہیں جس میں ہم پورے چوک کی جیومیٹری کو پراپر طریقے سے امپروو کرتے ہیں.
यानी उसमें प्रॉपर उस चौक को हम रिमॉडल करते हैं, उसकी चारों तरफ ट्रैफिक आ रही है उसकी रिमॉडलिंग करके, उसकी स्लीपें सेट करके, जो अपना सिग्नल लगा के, लेन मार्किंग वगैरह करके, वहाँ पे जो कोई एनक्रोचमेंट है उसे हटा के, उसको एक स्मूथ फ्लो देने के लिए उसको एक यूँ समझे कि चैनलाइज्ड एक सोफिस्टिकेटेड जो है वो हम उसका उस चौक को डिज़ाइन कर देते हैं। तीसरी जो हम इंजीनियरिंग सोल्यूशन पेश करते हैं वो उसमें आ जाता है, कुछ चौक ऐसे हैं, कुछ इंटरसेक्शंस ऐसे हैं जहाँ पे हम ये देखते हैं कि माइनर और शॉर्ट टर्म सोल्यूशन से काम नहीं चलना। हमने एक सैम्पल के तौर पे यहाँ पे फैसल चौक में अभी हम काम कर रहे हैं, वो थोड़ा सा चाइना की तर्ज पे हमको लाइट्स वगैरह लगा के अच्छे तरीके से प्रॉपर कंप्यूटर्स को एक गाइडलाइन देने के लिए वहाँ पे उस चौक को प्रॉपर रिमॉडल कर रहे हैं। फैसल चौक को माल रोड के ऊपर जो चेयरिंग क्रॉस की बात कर रहे हैं, और वहाँ वो तो बड़ा जरूरी है। हाँ, ट्रैफिक वहाँ पे वीआईपी मूवमेंट जी ऐसे, और घंटों ट्रैफिक ब्लॉक रहती है जी ऐसे। अब वहाँ पे हम एक ये चेंज कर रहे हैं, जो सिग्नल है ना, हमने सिग्नल ज़रा अब इंपोर्ट करवाए हैं, वो लगाने जा रहे हैं जिससे एक अच्छी एक विजिबल चेंज फील होगी और एक अच्छी यूँ समझे कि एक अच्छी लुक आएगी। किस किस्म की चेंज इस तरह की ना, मिसाल के तौर पे पहले आपके गोल सिग्नल है, अब हम उसको चौकोर शेप में लेके जा रहे हैं, उनकी लाइफ भी ज़्यादा है, फिर उसको एक्चुएट भी हम करेंगे। उससे फ़ायदा क्या होगा? उससे फ़ायदा गोल करें हाँ, उसका फ़ायदा ये होगा, देखिए जो आपके इस वक्त जो सिग्नल वो एक्चुएट नहीं है, वो अब हम जब इस एक सिग्नल को चेंज करेंगे, उसकी वायरिंग शायरिंग सारी सेट सूट कर देंगे, तो इस तरह फिर अगला करेंगे, फिर उससे अगला करेंगे, और सबको हम एक पैटर्न पे ले आएंगे। जब एक पैटर्न पे आएगा तो उसका एडवांटेज फिर ये होगा कि आपकी एक ट्रैफिक अगर चलती है, माल रोड पे चलनी शुरू हुई है, उसको ग्रीन मिलता है तो वो एंड तक उसको ग्रीन मिलेगा। ओके, ठीक है ना जी? ठीक है, मतलब ये नहीं है कि एक ग्रीन है तो अगला रेड है, वो इस तरह ये एक ग्रीन हुआ तो ग्रीन होगा। ग्रीन यूँ समझे कि फ्लो जो है वो आपको मिलता जाएगा। एक अगर रेड होगा तो टोटल रेड होगा। हाँ जी। तो माल रोड के पूरे, हाँ, माल रोड के पूरे। तो इस पे हम अभी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे इसको हमने टेकअप किया है, तो वो इंशाल्लाह एक बड़ा एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं कि ये किस हद तक कामयाब होगा। नहीं होगा इंशाल्लाह, ये कामयाब होगा। मतलब इस पे हम नहीं समझते कोई दो राय है, इसका कोई और सॉल्यूशन नहीं है। मतलब ये तो हो गया, अच्छी बात है, इसको करने जा रहे हैं, क्योंकि फैसल चौक जो है वो आपका मेन देखें वो चारों तरफ से आ रही है ट्रैफिक, वहाँ पे तो ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है। एक बंदा खड़ा हो जाए वहाँ पे, एहतजाज भी आपको पता ज्यादा जी ऐसे। तो वहाँ पे कोई और सॉल्यूशन नहीं है इसके अलावा को निकाले? पंजाब असेंबली भी सामने है, सीसीपी ऑफिस भी है, तजारती मराकज भी साथ सारे। माल रोड पे थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शन ये है कि हमारा बेसिकली जो माल रोड है ना वो हेरिटेज का हिस्सा है। आप माल रोड पे दरख्त नहीं काट सकते, दरख्त तो खैर आप कहीं भी नहीं काट सकते, माल रोड को आप वाइडन नहीं कर सकते, क्योंकि वाइडन करेंगे वो दरख्त बीच में आएंगे। तो माल रोड का जो राइट ऑफ वे है ना, इसको आपने इस तरह प्रिजर्व करना है, इसी के अंदर रह के अपना सोल्यूशन निकालना है। तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि यही सोल्यूशन है कि आपने सिग्नल जो है वही चलेगा, आप इसको सिग्नल फ्री कर नहीं सकते। सिग्नल फ्री करने के लिए आपको लैंड एक्वायर करनी पड़ेगी। जब आप लैंड एक्वायर करेंगे, आप बाहर निकलेंगे, आप फिर जाहिर है वो जैसे किया, ठीक है कि हाँ, उसके लिए फिर आपको जगह चाहिए। तो ये इंशाल्लाह हमारा एक पायलट प्रोजेक्ट है, और ये होपफुली हम अगले 2 से 3 दिनों में मुकम्मल हो जाएगा। 2-3 दिनों में? अच्छा। ये कंप्लीशन स्टेज पे, पीछे वो धरना था जिसकी वजह से आप ये समझ रहे हैं कि मई के अंदर ये इसका इंशाल्लाह मई, बल्कि मैं समझता हूँ कि अगले 5 दिनों में मुकम्मल हो जाएगा। वो हम इंशाल्लाह जब मुकम्मल होगा आपको दिखाएंगे। नहर एक ऐसी है जो जिसने डिवाइड किया हुआ है लाहौर को, आधा लाहौर उधर है, आधा लाहौर। हाँ जी, ऐसी मतलब पुराना लाहौर इस तरफ है और नया है। जी ऐसी। और नहर लोग चूज भी करते हैं, लाइक भी करते हैं। अब पूरा लोड जो है नहर के ऊपर पड़ जाता है। हाँ जी। अब नहर पे भी अलग, नहर पे कोई तुक नहीं बनता ट्रैफिक ब्लॉक होने का, क्योंकि वहाँ पे तो सिग्नल है ही कोई नहीं, अंडर पासिस हैं और सारी चीजें। वहाँ पे भी जे रोड है, जे रोड वाला वो जब आप आते हैं तो वो थोड़ा सा कट होता है, वहाँ पे अक्सर छोटा है, ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है। इसी तरह 1-2 और आपके अंडर पासिस है जहाँ पे ट्रैफिक ब्लॉक रहती है, उसका भी सोल्यूशन को निकाल रहे हैं या अभी बस चल रहा है? देखिए, मैं ये समझता हूँ जो नहर की हम बात करें ना, नहर जो कैनाल है, ये इस वक्त तो सफिशेंट है। इसकी आप देखें ना, लेनें बड़ी हैं, खुली लेनें हैं, और 3-3 लेनें 4-4 लेनें बन जाती है कहीं जाके, फिर अंडर पासेस भी हैं। अब ट्रैफिक वहाँ पे कब ब्लॉक होती है? नहीं, आप देखिए, अगर ठोकर से आप लेते हैं, यूनिवर्सिटी लेते हैं, आगे तक आते हैं, मतलब फिरोजपुर रोड तक तो ठीक है, आगे जो है वो क्लोज हो जाता है उसमें। नहीं, आगे हम इसको देखें, क्लोज इस तरह से नहीं है। मसाइल क्या है? मसाइल ये है कि आगे आपके ना जो मोटरसाइकिलिस्ट हैं उनकी तादाद बढ़ जाती है।
जो अहम इशू है। जब आपकी मोटरसाइकिल की तादाद बढ़ती है तो उससे कंजेशन और ज़्यादा डेवलप हो जाता है। इससे पीछे आप देखें आपको गाड़ियाँ ज़्यादा मिलेंगी ठोकर से माल रोड के दरमियान, और मोटरसाइकिल कम मिलेंगे। उसके बाद आपको मोटरसाइकिल ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन नहीं, जेल रोड वाला जो है ना वहाँ पे है, नहीं मैं बताता हूँ, हाँ, जो जेल रोड का अंडरपास है, ये बिल्कुल बात आपकी ठीक है, उसको रीमॉडल होना चाहिए, उसको नया बनना चाहिए। वो वहाँ मैं ये समझता हूँ कि उसकी तो अलाइनमेंट का मसला है, दूसरा उसकी जो विड्थ है वो बड़ी कम है और हाइट भी बहुत कम है। वो उसको यस एग्रीड, उसका हम बाकी देखें ना पूरे वो आपके फिरोजपुर रोड देख लें, जी जी जी, ऐसे ही सारे वो स्टेट है। ये हम इंशाल्लाह इसको बिल्कुल सजेस्ट करेंगे कि इसको वाइडन किया जाए और इसकी अलाइनमेंट भी सीधी की जाए, क्योंकि यहाँ पे आके लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं। बिल्कुल सही है। तो ऐसे ही है। अच्छा, मैं आपको जिक्र कर रहा था कि अभी इस वक्त हमने जो हमारी पाइपलाइन में कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, मिसाल के तौर पे हमने इस वक्त किया ये है कि कोई 20 जंक्शंस हैं, इंटरसेक्शंस हैं, जिनको हम इम्प्रूव करने का इरादा रखते हैं पूरे लाहौर के। यानी वहाँ पे माइनर इंटरवेंशंस भी होंगी और मेजर इंटरवेंशंस भी होंगी। अब ये जो चौक हैं, इन चौकों को हमने प्रॉपर डिज़ाइन करके और ADP में डालने के लिए जो है वो हमने आगे फॉरवर्ड कर लिया, डिज़ाइन करके कास्टिंग करके अप्रूवल के लिए भेज दिया। हाँ, अप्रूवल के लिए उसके ADP में इंक्लूजन के लिए हमने फॉरवर्ड कर दिया एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम में। उसमें इंक्लूड होगा जी हुकूमत पंजाब, और इंशाल्लाह अगले साल ये जैसे ही आते हैं तो इससे मैं समझता हूँ कि जब इन पे काम होगा। तो मरियम नवाज साहिबा ने लाहौर को खूबसूरत बनाने के लिए इतना बड़ा अरबों का प्रोजेक्ट दे दिया है, टफ टाइल लगाए, खूबसूरत बनाए, पौधे लगाए, कोई शक नहीं। आप भी उसमें कोई शामिल? जी ऐसे कोई शक नहीं। इससे पहले मैं समझता हूँ कि लाहौर के लिए इतना काम नहीं किया गया जिस तरह से इस तरह एक बिग पैकेज लाहौर के पास है, और मैडम CM ने बड़ा, इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत अच्छा माशाल्लाह काम मतलब फंड्स दिए हैं और काम हो भी रहे हैं और अच्छे काम हो रहे हैं। देखिए बात पता है, मेरा पॉलिटिकली तो प्रोग्राम नहीं है जी, सियासत एक अलग चीज़ है। जो हकायक हो, कोई भी बंदा हो, उसकी तारीफ करनी चाहिए। अब ओवरऑल सिर्फ लाहौर नहीं, उन्होंने पूरे पंजाब के अंदर ये देखें, साफ सुथरा पंजाब, देहातों में लोग वो सर आप देखिए, इससे पहले डॉक्टर साहब आपको मिसाल नहीं मिलती, इतने अच्छे जो इनिशिएटिव्स हुए ना इस दौर में हो रहे हैं या हुए हैं। इससे पहले अब कुरैशी साहब अगला काम क्या किया है, साफ सुथरा चल रहा है। उन्होंने कहा जी चले शहर को तो हम लाहौर को तो बना रहे हैं, शहरों को कर रहे हैं, देहातों के अंदर वो छप्पड़ जोहड़ वो होते थे, वहाँ पे स्मेल आती थी, बदबू आती थी। उन्होंने कहा जी उसको हम कैसे करें? उन्होंने कहा जी आप ऐसे पौधे ऐसे लगाएं जिसके अंदर वो सक करे, वो बदबू की जगह वो उसको खुशबू महक दे और उसको आहिस्ता आहिस्ता वो साफ करे। सारा मतलब ये बड़ा प्रोजेक्ट। पिछले लास्ट वीक मैं गाँव गया, आई वॉज सरप्राइज्ड कि वहाँ पे वाकई जो लोग हैं वो सफाई पे लगे हुए थे, यानी हमारे गवर्नमेंट के। तो मैं देख के हैरान रह गया कि गांव में वाकई काम हो रहा है जी। उन्होंने अब देहातों के अंदर वो हमारे देसी भाई जो हैं उन्होंने नंबर सेव किए हुए हैं। वो उनका जो हेल्पलाइन नंबर है, अगर नहीं आता ना कोई हफ्ता तो कॉल करते हैं, साड़ियाँ नालियाँ भरियाँ पियाँ साढ़े मतलब उनको भी शौर आ रहा है कि अब कहाँ पे कॉल करना। जी बिल्कुल, इसी जज्बे के साथ इंशाल्लाह हम भी सर अपना हिस्सा डाल रहे हैं, और हमने कोई इस वक्त कोई 31 के करीब जो स्कीमें हैं छोटी बड़ी मिला के जो हैं वो प्रपोज की हैं। वो 30 हाँ जी 30 स्कीमें तो वो हमने भिजवाई हैं। इंशाल्लाह जैसे वो ADP में आती हैं हम अगले साल उसको जैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। मैं ये समझता हूँ उनके इम्प्लीमेंट होने से पहला प्रोजेक्ट आपका मार रोड है जो कंप्लीट होने वाला है बस। हाँ वो तो ये बड़ा मेजर जी ऐसे ही है। और जैसे ही हम वो इंटरवेंशन मुकम्मल करेंगे उससे बड़ा एक बड़ा इम्पैक्ट आएगा इंशाल्लाह। अच्छा, दूसरा ये है कि कुछ हमारे दो तरह के फंक्शंस हैं। एक वो फंक्शंस हैं जो रेगुलेटरी हैं, कुछ वो हैं जो डेवलपमेंट से रिलेटेड है। ये तो हम बात कर रहे थे डेवलपमेंट से रिलेटेड फंक्शंस की, जिसमें हमारे इंजीनियरिंग सोल्यूशन हम पेश करते हैं, जिसमें हमारी बड़ी क्लोज लाइजनिंग है CTO साहब की टीम के साथ, CTO साहब के साथ, और हम वक्तन मीटअप भी करते हैं। वैसे ये मेरे तो भाई देखें मीडिया में रहते थे, मुझे तो फर्स्ट टाइम ये इस बात का पता चला कि ट्रैफिक वालों के साथ आपका बड़ा जी उसकी वजह सुने ना, उसकी वजह ये है एक चौक है वहाँ पे वार्डन खड़े हैं। बड़ाई साहब को पता होगा, मुझे नहीं पता है, अमृतसर जी को मुझे तो नहीं बड़ा लाइजनिंग है। एक चौक पे वार्डन खड़े हैं, वो देखते हैं कि ये लोग इस तरह से वायोलेट कर रहे हैं, वो फिर हमें बताते हैं कि ये मसला पेश आ रहा है, फिर हम उनके साथ मिलकर उसका सलूशन निकालते हैं। अगर हम अपना सलूशन निकाल देना, देखिए खाली इंजीनियरिंग सलूशन से बात नहीं बनती, आपने प्रैक्टिकली भी देखना है कि हमारे बिहेवियर क्या है, चिप इन करके ऑन बोर्ड लेके तो फिर उसका सलूशन निकालना होता है। तो ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह उनसे बड़ा क्लोज लाइजनिंग है।
अच्छा, इसी तरह से हमारे कुछ फंक्शंस हैं जो रेगुलेटरी फंक्शंस हैं। रेगुलेटरी फंक्शंस में देखें हम, एक तो ये है कि रिसेंटली हमने पिछले साल शुरू किया पार्किंग जो है, आप देखें जितनी कमर्शियल मार्केट्स हैं, प्लाजे हैं, ये है लाहौर की दुखती राग। वो नीचे लोग क्या करते हैं, जो पार्किंग जो जिस मकसद के लिए बनी थी ना, वो मकसद अचीव नहीं होता। वो करते क्या है, वहाँ पे अपने ऑफिस बना लेते हैं, कोई हॉस्पिटल नीचे किसी ने अपना डॉक्टर बैठे हैं, कोई मतलब और लोग बैठे हैं, कोई मतलब ऑफिस बने हुए हैं, किसी ने कैंटीन बनाई हुई है। कसूर किसका है? वो नहीं, वो मैं वही कर रहा हूँ ना, एलडीए का हुआ ना, आप ठीक एलडीए क्यों प्रूव करता है? देखिए मैं फिर उसका बता रहा हूँ, हल बताता हूँ उसका। फिर हमने ये हल किया कि अब हम ये कर रहे हैं कि उन एनक्रोचमेंट्स को हम ख़त्म कर रहे हैं वक्तन फ़क्तन। एक वक्त यकदम तो नहीं होनी, टाइम लगना, एक बड़ा बिग एरिया है। हम टाइम देते हैं, नोटिस देते हैं कि अपनी ये इंक्रोचमेंट खुद खत्म कर लें। जब वो उन 2-3 नोटिस के बाद नहीं तो फिर ऐसे एक्शन, हाँ, अदरवाइज फिर हम क्या करते हैं, फिर हम जाके उसको गिराते हैं। हमने तकरीबन, मैं अच्छा ये ब्रेक ले ले, उसके बाद ये बड़ी बात है कि ये जो पहले तो बना लेते थे सिफारिश से, धक्के से, ले दे के, अब उस पे आप एक्शन करने जा रहे हैं। मैडम सीएम साहिबा जो है उस पे आपका आशीर्वाद है कि एक्शन करें। ब्रेक के बाद अपने नाज़रीन को बताते हैं कि आप लाहौर को साफ करने के लिए, ट्रैफिक की रवानी के लिए, ये गलत पार्किंग या ना गलत बिल्डिंग बनाने के ऊपर क्या एक्शन करने जा रहे हैं। ये बड़ा ज़रूरी है लाहौरियों के लिए, और स्पेशली वो कब्जा माफिया और वो रोड के ऊपर गाड़ी फेंक गए और भाग गए, उनके लिए बात हो रही थी। तो चीफ इंजीनियर टीपा वो साथ मौजूद हैं, और वो एलडीए के, देखें मैं तो ब्लेम करता हूँ एलडीए के ऊपर कि ये बिल्डिंग्स जो है नाजायज़ पार्किंग जो नहीं रखते, प्लाजे, दुकानें, हॉस्पिटल्स, तो ये कसूर एलडीए का है। वो कैसे कि एलडीए के अप्रूवल के बगैर यार किसी की ऐसी की तैसी नहीं, वो कैसे बना जाए। तो चीफ इंजीनियर साहब देखें, इसमें कुरैशी साहब हमें ना करें, सारी बातें उनके ऊपर ना डालें, कहीं ना कहीं नहीं देखिए आपके मदर इदारे का भी कहीं ना कहीं फॉल्ट है। देखिए डॉक्टर साहब, एलडीए मैं समझता हूँ जो काम एलडीए कर सकता है ना पॉजिटिवली वो करता है। आप सारे काम ठीक नहीं कर सकते, कुछ बीच में होता है कि आपसे कुछ चीज़ें रह जाती हैं, मतलब कोई लाजमी नहीं है कि आप ये कहें मैं बिल्कुल कर ही नहीं सकते। इसमें मैं ये समझता हूँ कि देखें, एक पार्किंग एग्रीमेंट होता है, उसको वायोलेट नहीं होना चाहिए। अब उसका नुकसान क्या है, जब आप नीचे इंक्रोचमेंट्स खड़ी कर देते हैं ना, पार्किंग नीचे नहीं होती, नतीजा के तौर पे गाड़ियाँ सड़क पे आती हैं। जब गाड़ियाँ सड़क, मिसाल के तौर पे वो प्लाजे के सामने सड़क पे उसने एक लेन काबू कर ली, जब एक लेन पे लाइनें लग गई गाड़ियों की, पीछे आपके पास 1 या 2 लेनें बच जाती हैं, वहाँ पर कंजेशन शुरू हो जाता है। इस पे अब हम कोशिश कर रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता, पहले तो हम इस वक्त हमारी ज़्यादा जोर ये है आप कोशिश ना करें। उसकी रीज़न ये है कि इस वक्त देखिए, मैं शायद बहुत अरसे बाद हिस्ट्री में दूसरी दफ़ा ऐसा देखा है कि जो काबज हैं लोग, कब्जा माफिया है, जिन्होंने नाजायज़ बिल्डिंग्स बनाई हुई है, मरियम नवाज साहिबा ने बगैर, उन्होंने कहा जी कोई सिफारिश नहीं है, यहाँ पे किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं है। अब देखें ना वो अंदरूनी सर्कुलर रोड और शाह आलम मार्केट, वहाँ पे क्या हम इसी पैटर्न पे लगे हुए हैं, और इसी पैटर्न पे हम पहले तो ये कोशिश करते हैं कि जो इस वक्त काम चल रहा है ना, जो नए बन रहे हैं उनको तो इंश्योर करवाएं ना पहला। अब बाकी को ऐसा साथ लगे हुए हैं, उनके साथ क्या नहीं, उनको गिरा रहे हैं। जो पहले वाले हैं ना, एग्जिस्टिंग जो है, कोई थ्रेट्स नहीं आते। नहीं, थ्रेट्स तो क्या नहीं, सिफारिश आती है, बड़ी नहीं बड़ा नहीं, ये तो इस तरह नहीं कभी हुआ, लेकिन सिफारिशें बहुत आती हैं। फिर कंप्रोमाइज नहीं करते, नहीं कर नहीं सकते ना। अगर आप एक जगह पे कंप्रोमाइज करते हैं फिर आगे जाके फंस जाते हैं, वो प्रेसिडेंट बन जाता है ना जी। तो इसलिए फिर भी बड़ा प्रेशर आ जाता है प्रेशर। देखिए आप गवर्नमेंट मुलाजिम पे वैसे ही प्रेशर मिनिस्टर साहब आ गया भाई, नहीं है मेरा, हर तरह का प्रेशर होता है। कोई मतलब मिनिस्टर, फिर क्या जवाब देंगे? दोस्तों का प्रेशर आ जाता है कि ये मेरा फलां मेरा दोस्त है, ये है वो है, हाँ, लेकिन नहीं करो भाभी दा जा फिर नहीं अल्लाह खैर करे। तो इस तरह कभी हुआ नहीं, तो इस पे हम करते हैं, लगे रहते हैं, कोशिश करते हैं साथ साथ इसको करें। ये बड़ा एक अहम मैं समझता हूँ कि हमारा काम है जिसको हम कर रहे हैं। दूसरा, अच्छा इससे पहले हमारे जो डीजी साहब है माशाल्लाह, उनका एक बड़ा मैं ज़रूर बताऊँगा कि उन्होंने ना ये जो नीटी ग्रिटी है ना, छोटी छोटी मिसालों, सड़क पे कोना, हाँ ताहिर साहब की कोना टूटा हुआ है, हाँ कोना टूटा हुआ है, फलां जगह पे ये है, यहाँ पे कम से कम अगर आप कर्ब स्टोन के सामने मिट्टी को साफ करवा दें तो कर्ब स्टोन की शक्ल निकल आएगी। तो ये वो काम उन्होंने बड़े मतलब टेकअप किए हैं। मैं समझता हूँ कि इससे पहले ये काम नहीं हुए। पिछले दिन आप ख्याबान जनाब पता नहीं किधर वो इशारों की स्पाइस हुई, जी वो डीजी साहब हमारे माशाल्लाह बड़े इस हवाले से ना वो सेंसिटिव है। वो कहते हैं जी
आप फलां जगह पे ये मट्टी नहीं होनी चाहिए, फलां जगह पे कर्ब स्टोन आपका बोर्ड खड़ा है उस पे वैसे वो आपस की बात है, वो काबिल तारीफ बात इस वजह से थी कि सिग्नल्स के ऊपर डस्ट चढ़ी होती थी, वो धुंध में तो बिल्कुल नजर नहीं, तो साफ करवा रहे थे, साथ आप थे और वो जी। अब हमने देखें तकरीबन यूँ समझे कि 50% जो साइन बोर्ड्स है ना उनको हमने साफ कर दिया है। अच्छा। धुलवा दिया है बकायदा ना, हमने टीमें बनाई हुई हैं, 2 स्क्वाड बनाए हुए हैं हमने अपने। नहीं वो तो कमर्शियल किए होते हैं, उनको नहीं कहते आप धुलाएं? नहीं कमर्शियल नहीं, अभी हम कर रहे हैं जो हमारे अपने लगे हुए साइन बोर्ड। ओके जो गवर्नमेंट के साइन बोर्ड है ना, एलडीए के टीपा के या एमसीएल के, वो पता नहीं कब के लगे हुए हैं, उन पे मिट्टी चढ़ी हुई है, उसको कोई वाली वारसी नहीं है, उसको हम धुलवा रहे हैं, साफ कर रहे हैं, और वो सिर्फ धोने से वो प्रॉपर खूबसूरती निकल आती है। यहाँ पे मेरे ज़हन से निकल जाए कि ये जो साइन बोर्ड लगे होते हैं, देखिए पीएचएस को देखता है, ठीक है, इनका जो कि खुदा ना खास्ता गिर गया, बिल्डिंग को नुकसान होगा, आवाम को, इसको भी आप देखते हैं या ये पीएचए का अंडर है? ये पीएचए का ही, इसको आप इसको देखते हैं? नहीं, हम इसको नहीं देखते, हम देखते हैं जो साइन बोर्ड ये रोड के अलॉन्ग लगे हुए हैं या इस तरह फुटपाथ पे कोई है, कोई ऐसे, ये आपके अंडर, ये हमारे अंडर, हम इसका एनओसी भी देते हैं। हमारे एनओसी के बगैर बोर्ड आप लगा नहीं सकते, और जो लगे होते हैं वो हम कटवा देते हैं। इस वक्त तक आप ये देखें, हमने कोई 6 से 7 हज़ार के दरमियान जो है, यानी 63-6400 बोर्ड जो है वो हमने रिमूव किए हैं पूरे लाहौर के अंदर। हाँ जी, पूरे लाहौर के। तो इतनी वायलेशन थी बहुत ज़्यादा, और अभी 6000 मुँह से कहना। हाँ जी बड़े, तो ये हम लगे भी तो 1 साल से हुए हैं, तो एक साल, ये 1.25 साल से इस काम पे लगे हुए हैं, बोर्ड काटे हैं सारे। फिर उसके बाद अब देखें, आपको शायद फील होता हो कि अब जब आप जाते हैं तो आपको इतना वो जो बोर्डों की वजह से पोल्यूशन थी ना, वो फील नहीं होती होगी, यानी जो विजन पोल्यूशन आप जैसे कहते हैं, काम तो हो रहा है, काम तो हो रहा है, तो उससे वो बड़ा अच्छा हमारा हो गया, वो हमारा बड़ा अच्छा फंक्शन है। फिर इस तरह से और इसके अलावा हम ये देखें, अब हमने 2 टीमें बनाई हुई हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए, उनको हमने लगाया हुआ डिफरेंट एरियाज में कि जहाँ पे कोई लेट से रात को कोई ट्रक टकरा गया है, वो टूट गए 4 कर्ब स्टोन, तो उसको हमारी टीम जाकर ठीक कर देगी, रिपेयर करके। अच्छा, ये सारे इंजीनियर्स होते हैं आपके पास? जी इंजीनियर, मतलब कोई किस चीज़ का इंजीनियर है, वो किस चीज़ जी ऐसे ही। इसके अलावा अच्छा हमारे पास देखें, जो अभी हम इंशाल्लाह को मेगा प्रोजेक्ट्स भी करने जा रहे हैं, वो जो मैंने आपको बताया डीपी में डलवा रहे हैं, उसमें बड़े प्रोजेक्ट्स भी हैं। तो अगर आप पास्ट हिस्ट्री देखें टीपा की, तो जिस तरह पहले फरमा रहे थे कि मेट्रो बस टीपा ने बनाई, आज़ादी चौक का फ्लाईओवर देखें, वो बड़ा प्यारा एक आइकॉनिक है, हाँ जी, वो टीपा ने बनाया। फिर इस तरह से जो ये फरोजपुर रोड पे फ्लाईओवर्स हैं, वो टीपा ने बनाए। इसी तरह से ये भी आप लोगों ने? जी वो रोटरी जो है वो तो उसके मेट्रो के साथ, हाँ मेट्रो के साथ नहीं, वो बाद में बनाए, उसको मेट्रो से कोई ताल्लुक नहीं। फिर वो रोटरी है अब चुंगी अमर सिद्धू पे, वो भी टीपा ने बनाई। इस तरह से मैं समझता हूँ कि हमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कैपेसिटी बिल्डिंग की कमी नहीं है, कैपेसिटी बिल्डिंग हमारी बड़ी ज़बरदस्त है, और हम अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं इस वक्त भी। इतनी बड़ी है आपके पास? जी बड़ी हमारे पास जो इस वक्त मैं समझता हूँ, देखें टीपा के पास जो इंजीनियरिंग के 6 डायरेक्टर्स 19 में हैं। अच्छा, हाँ, तो रफली आइडिया कितने को एम्प्लॉइज होंगे हमारे? वैसे तो एम्प्लॉइज हैं 283। अच्छा, ठीक, हाँ जी, तो एम्प्लॉइज हमारे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम काम कर रहे हैं, और पूरी कोशिश होती है। लेबर प्राइवेट बाहर से लेते हैं? हम नहीं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब कंपनीज के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं? जी, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जी, जाहिर है, वाच हम खुद करते हैं। मेट्रो का आपने जिक्र किया, मेट्रो प्रोजेक्ट जब हुआ, एक तो डिले होने की वजह से, दूसरा बहुत सारी इस पे पिछली गवर्नमेंट के अंदर ऑब्जेक्शन लगाया गया, ये बड़ा महंगा प्रोजेक्ट था, तो इसके ऊपर थोड़ा सा आप बताइए। नहीं, कोई नहीं महंगा, देखें एक तो डिले भी नहीं हुआ, मैं बताता हूँ आपको, जेन्युइनली ये जो प्रोजेक्ट है 11 माह में मुकम्मल हुआ है। अच्छा, मेट्रो बस की बात कर रहा हूँ जी, मेट्रो बस, ये ग्रीन लाइन की, ठीक है ना जी, 11 माह के अंदर, 11 माह जेन्युइनली, इसमें कोई वो नहीं है कि मतलब हम ये कहें नहीं वो तो, और जो देखिए फिर वो 72 करोड़ अपना 72 अरब लग गया जी, ये हो गया, नहीं वाकई 29 बिलियन में ये मुकम्मल हुआ है। अच्छा, हाँ ऐसे हवा में बात, बस वो तो फिर ऐसे ही होता है ना जी, वो जब सियासी बात है, उस पर मैं तो नहीं कोई चर्चा कर सकता, लेकिन चूंकि मैं इदारे का इस वक्त सरबराह हूँ, तो मैं अपने इदारे के लिए ये कहूँगा कि जी हमने 11 महीने मुकम्मल किया और 29 बिलियन मुकम्मल किया। ये तो बड़ी अच्छी बात है, इतना शॉर्ट। जी। अच्छा, वो आप मीनारे पाकिस्तान के पास जो बनाया आपने, वो बड़ा आइकॉनिक है, आपने देखा अच्छा, वो एक खूबसूरत भी है। अच्छा, वो लंबी लंबी तारें सी, वो क्या बनाई है, उसका क्या मकसद है? असल बंदे नहीं, वो देखिए एक खूबसूरती है, उसका फायदा भी है? फायदा तो इतना खास नहीं है, खूबसूरती है एस्थेटिकली जो है ना, वो इंटरनेशनल लेवल का, वो आपने चुंगी अमर सिद्धू का वो भी, जी हाँ, वो भी अच्छा रोटरी आपने देखा। अब चुंगी अमर सिद्धू आप देखते किस तरह मोटरसाइकिलों का एक जमे गफीर वहाँ पे टकरा रहे होते थे एक दूसरे से, अब वो रोटरी पे चढ़ते
हैं अपना उधर से चक्कर काट के जिसने जिधर जाना उधर उतर जाते हैं। तो यहाँ भी कुछ कर रहे हैं ये यहाँ पे कर रहे हैं। अब हम इसको ना आप खोल नहीं सकते क्योंकि हाँ इसका कोई और ही सोल्यूशन निकालना। हाँ नहीं इसको हम कर रहे हैं, इसको ना ये हमको अपना जो फेंस है इसको हटा के पीछे लेके आ रहे हैं। लेके आ रहे हैं, इसको हम करेंगे इंशाल्लाह दोनों तरफ से। हाँ दोनों तरफ से, तो उससे कुछ जगह क्रिएट हो जाएगी काफ़ी सारी, तो उससे इंशाल्लाह को पार्किंग मसाइल हमारे कम से कम अपने ऑफिस के तो ठीक हो जाएंगे ना जी। ठीक है। तो ये मैं इसी तरह से सर बात कर रहा था कि जो टीपा है ये वाइटल ऑर्गन है गवर्नमेंट का, और हम इस वक्त पूरे कोशिश के साथ, मेरी पूरी टीमें जो है सारी वो हम लगे हुए हैं। हमारे जो डीजी साहब हैं वो वक्तन फ़तन गाइड करते हैं, बड़े माशाल्लाह उनको मैंने देखा है, बड़े उनके जो आइडियाज़ हैं वो बड़े आला हैं। अच्छा, एक आपका ना इसी दौरान गुफ्तगू फिर आप आगे निकल गए, जो बड़ा इस वक्त हॉट इशू है और ये पार्किंग वाला, जिस पे आप अभी नई बिल्डिंग्स जो हैं उनको तो आप ऐसे बनाने नहीं दे रहे ना कि भाई पार्किंग का करें। अच्छा, इसमें दो चीजें हैं, एक तो अगर कोई कमर्शियल यूज कर रहा है, प्लाजा है, हॉस्पिटल है, तो सबसे पहले तो पार्किंग की वजह से वहाँ पे क्लाइंट कम आता है। ठीक है, अगर वो पार्किंग बना दे तो क्लाइंट बढ़ जाएगा, उसका खुद ये ख्याल करना चाहिए। अब इस पे आप कोई बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं कर रहे। देखिए मैं बताता हूँ, नई बिल्डिंग जो बना रहे हैं, मैं बताता हूँ। देखिए जो नई बिल्डिंग बनती है ना, उसके लिए पार्किंग स्पेस देना मैंडेटरी है कमर्शियल बिल्डिंग के लिए। उसमें हम जो है अंडरग्राउंड पार्किंग मोस्टली होती है, वो हम अब इंश्योर करवा रहे हैं। अब कंप्लीशन सर्टिफिकेट बिल्डिंग का मेरा क्वेश्चन ये है, शायद मैं गाइड नहीं कर पा रहा। देखिए ये चीजें तो आप जब पहले प्रोजेक्ट होते थे, पार्किंग का आप सोसाइटी ले लें, आप प्लाजा ले लें, आप मार्केट ले लें, उस डिजाइन के अंदर पार्किंग मस्ट होती थी, लेकिन उस पे अमल दरामद नहीं होता था। अब उस पे अमल दरामद भी करवा रहे हैं। जी ऐसे ही है, वही मैं सबमिट कर रहा हूँ ना जी, कि जब बिल्डिंग कंप्लीट होती है तो हम टीपा जाके उसकी पार्किंग को चेक करता है कि एज पर डिजाइन, एज पर स्टैंडर्ड्स, एज पर स्पेक्स और एज पर रिक्वायरमेंट। नहीं, आप ये कंप्लीट पे क्यों जाते हैं? आप स्टार्ट आगाज में क्यों जाते हैं? क्या आपने मैं सबमिट करता हूँ, वो तो वक्तन फक्तन चक्कर लगते ही रहते हैं, वो तो लगते ही रहते हैं। जब वो कंप्लीट होती है, उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट हम उस वक्त तक इशू नहीं करते जब तक वो प्रॉपर हमें वो चेक ना करवाए कि पार्किंग की जितनी रिक्वायरमेंट थी, जो इन कैसे, आउट कैसे, कितनी गाड़ियां लगती हैं, सारी चीजें। कोई मतलब रैंप की कोई स्लोप तक इवन हम चेक करते हैं कि इसकी स्लोप कहीं मतलब ज्यादा वो तो नहीं है, डीप तो नहीं है। ये तो हो गया नई बिल्डिंग्स के लिए। अब जो पुरानी कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं वहां पे बहुत इशू है, उनके लिए क्या आप कर रहे हैं? देखें उसके लिए मैं बताता हूँ। देखें जो जिनकी तो पार्किंग अवेलेबल है और वो एनक्रोच्ड है, उसकी तो हम एनक्रोचमेंट खत्म करवा रहे हैं। ठीक है। बाकी जो बिल्डिंग्स हैं जिनकी पार्किंग के मसाइल हैं, पुरानी बिल्डिंग है, जैसे वो कन्वर्ट हो गई रेजिडेंशियल से कमर्शियल में, यानी पहले वो एरिया रेजिडेंशियल था, फिर वो सड़क कमर्शियल हो गई, वो बिल्डिंग उस सड़क पे आ गई, बिल्डिंग भी कमर्शियल हो गई। जब बिल्डिंग कमर्शियल हुई तो अब उस पे हम ये तो नहीं कह सकते कि इस पूरी बिल्डिंग को गिरा के नई बनाएं और पार्किंग बनाएं। सोल्यूशन की तरफ जाना है। सोल्यूशन फिर हम देते हैं उनके साथ मिलके कि आप इस तरह पार्किंग स्पेसेस जनरेट कर लें। उनको टाइम देते हैं कि आपके पास लेट से 1 साल का टाइम है, आप इस 1 साल में जो है ये अपनी रिक्वायरमेंट, डिजाइन बनवा ले, वो सारा वो एलडी उनको इशू करता है कि ये आपने चेंजेस करनी है अपनी बिल्डिंग के अंदर, तो वो फिर वो करते हैं। अच्छा, इससे बिना अगर इस पे आप अमल दरामद करवा जाते हैं तो काफी सारे मसाइल जो है हल हो सकते हैं ट्रैफिक की रवानी के लिए। तो इसमें ट्रैफिक पुलिस जो है ये भी जब आप सोल्यूशन उनको देते हैं, इंजीनियरिंग सोल्यूशन, वो भी आपके साथ ताबन करते हैं। जी देखें बात ये है, मैं आपको बताता हूँ। लेट से पीछे जब स्कीमें लेट से टीपा से जाती हैं ना, तो जिस फोरम पे जाती हैं अप्रूवल के लिए, वो फोरम ट्रैफिक पुलिस को साथ बुलाते हैं कि क्या ये आपकी लाइजनिंग के साथ बनी है, आप लोगों के इल्म में है कि ये इंटरवेंशन होने जा रही है। तो वो जाहिर है हमारा और उनका जॉइंट वेंचर के तौर पे हम उसको सर्वे वगैरह विजिट वगैरह करके डिज़ाइन तैयार करते हैं। अगर मैं आइसोलेशन में डिज़ाइन तैयार करूँगा, मैंने तो कर दिया इंजीनियरिंग के हवाले से, और वो जो लोगों की साइकी देख रहा है बंदा खड़ा, वार्डन जो है, उसको मैं पूछूंगा ही नहीं, तो वो फिर कल को फिर वही मसाइल आएंगे। तो वो हमने सारी चीज़ें देख के उसको करना होता है। इस तरह की वर्कशॉप वगैरह भी होती रहती हैं आप लोगों की? जी हाँ बिल्कुल होती है हमारी आपस में वर्कशॉप्स भी, यस मीटिंग्स भी होती हैं, वर्कशॉप्स भी होती हैं। वो हम बल्कि मतलब उसमें बुलाते रहते हैं ट्रैफिक के डीएसपी साहबान को, कभी हम खुद भी जाते हैं सीटीओ साहब के पास जो है, तो ये बड़ा बात। अच्छा, ये पहले तो ये होता था कि ब्रिज वगैरह और अंडर पासेज जो हैं वो टीपा ही, हमारे ज़हन में तो यही था, वो यही बनाते हैं, क्योंकि हमारे एक दोस्त थे, अब तो रिटायर्ड हो चुके हैं, डायरेक्टर इसमें टीपा में, वो कहते होते थे जब गुजरते थे तो वो शेरपाव ब्रिज जो जे रोड पे है,
کہتے تھے یہ ڈیزائن ہم نے کروایا تھا, ہم نے اس کو بنایا تھا جب ہم تھے یہاں پہ انجینئر تھے, ایسے تھے. تو اب بھی برج جو ہے لاہور کے اندر وہ ٹیپا ہی بناتا ہے یا کوئی اور بھی؟ میں پہلے تھوڑا سا یہ کلیئر کر دوں, دیکھیں ٹیپا اور ایل ڈی اے ایک ہی ہے. ٹھیک ہے, کوئی ڈفرینس نہیں ہے کہ ایل ڈی اے کوئی اور ادارہ, ہم یوں سمجھے کہ ایک ایل ڈی اے کا ذیلی ادارہ ہے. ایل ڈی اے ہمارا کام ڈیوائڈ کیا ہوا ہے کہ اس کا یہ کام ہے, اس کا یہ کام. ہمارا مطلب ہم ایل ڈی اے کے انڈر ہے, ایل ڈی اے ہمارا مین ادارہ ہے. ہم جو سمجھے ٹیپا ایل ڈی اے ہی ہے. آپ ڈی جی ایل ڈی اے کے انڈر؟ جی انڈر, ایسے ہی ہے. تو اس میں ایل ڈی اے کام کر لے, ٹیپا کام کر لے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب کام آیا لیٹ سے کچھ کام ٹیپا نے کر لیا. اویلیبلٹی کس کی ہے؟ اویلیبلٹی کس کی ہے؟ ایل ڈی اے کی ٹیم کی ہے, ٹیپا کی ٹیم کی. اب جیسے مثال کے طور پہ لاسٹ ٹائم ہم نے پیچ ورک کیا, آپ کے شاید علم میں ہو, پیچھے آج سے کچھ 4-5 مہینے پہلے. اس پیچ ورک میں نہر کو ہم نے ایک بارڈر لائن بنایا کہ نہر سے پرے یعنی گلبرگ کی طرف جو ہے وہ ایل ڈی اے کرے گا, نہر سے ادھر یہ اقبال ٹاؤن ہو گیا, مسلم ٹاؤن ہو گیا, یہ ساری سائڈیں ادھر ٹیپا کرے گا. ڈیوائڈ کر لیا. روڈز بھی بناتے ہیں آپ؟ ہاں جی, روڈز بھی بناتے ہیں. ہاں, روڈز بناتے ہیں, اپنا ایم اینڈ آر کا کام بھی کرتے ہیں. تو اس میں پھر یہ ہوا کہ ایل ڈی اے نے الگ سے کام کیا, ٹیپا نے الگ سے کام کیا. ہم نے وہ بھی آپ پرائیویٹ کمپنیوں سے کانٹریکٹ؟ جی کانٹریکٹ کر وہ دیکھیں. اور ڈیزائن جو ہے وہ خود آپ دیتے؟ جی ڈیزائن خود. مٹیریل جو ہے وہ کانٹریکٹر لے کے آتا ہے. کانٹریکٹر چیک کرتے ہیں. نسپاک بھی تھی, ہمارے اپنے بندے بھی چیک کرتے ہیں. اچھا, اب اس پہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے 2 مہینے میں 103 جو سڑکیں تھیں ان کی ریپیئر اینڈ مینٹیننس کی ٹیپا اور ایل ڈی اے نے مل 2 مہینے کے اندر 103 لاہور کے اندر. تو ابھی ہم ارادہ رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ کوئی اگلے مہینے 1.5 مہینے میں ایک اور فیز 2 کے طور پہ انشاءاللہ ہم لے کے آئیں گے اس کو, پیچ ورک کو. تو فیز 2 کے طور پہ پھر کریں گے جہاں جہاں رہ گیا ہے یا جہاں اب جو ایریاز رہ گئے ہیں. یہ حکومت نئی سی ایم مریم نواز صاحبہ آئی, انہوں نے لاہور کو, چلے پنجاب کو تو ہم چھوڑ دیتے ہیں نا, لاہور کی بات کرتے ہیں کہ لاہور کا ہم ذکر کر رہے ہیں. جی اس کی خوبصورتی کرنے کے لیے, رینوویشن کرنے کے لیے, ریپیئر کرنے کے لیے, نئی چیزیں بنانے کے لیے وہ کافی توجہ دے رہی ہیں. اس میں میاں نواز شریف صاحب کا بھی اس میں بڑا فوکس کیا ہوا ہے. تو اس میں آپ پہلے بھی کام کر رہے تھے, کیا آپ کی انگیجمنٹ بڑھی ہے اس میں؟ آپ کو انگیج زیادہ کیا گیا ہے, آپ کو ورک زیادہ دیا گیا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ آسانی سے پروجیکٹ جو ہے وہ اب جو ان کی سمجھ میں سمجھا کے کہ یہاں پہ ٹریفک کی روانی جو ہو سکتی ہے, یہ روڈز یہاں سے نکالنے سے یہ فائدے ہو سکتے ہیں, آپ گائیڈ کرنے میں آسانی ہوئی ہے یا ایز اٹ از جیسے پہلے چل رہا؟ نہیں, آسانی ہوئی ہے. دیکھیں پہلے سے میں نے بتایا کہ چیزیں بہتر ہوئی ہیں. بہتر ہوئی ہیں. بہتر ان دا سینس کہ ہمیں جو ہے ٹائم ٹو ٹائم اسائنمنٹس دی جاتی ہیں کہ فلاں علاقے کا وزٹس کریں, اس پہ ایک ٹریفک کنجیشن ہو رہا ہے, اس کا کوئی سلوشن نکالیں. وہ ہم نکالتے ہیں, پھر اس کا سلوشن دیتے ہیں, ایون مطلب امپلیمنٹ بھی کرتے ہیں. یہ تجاوزات کے خلاف جو آپریشن ہو رہا ہے اس میں بھی آپ کا کوئی آپ کا نہیں ہے؟ ہمارا نہیں ہے. یہ اس میں میں سب سے بڑی مثال یہ دیتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو اندرون شہر کے اندر ابھی تجاوزات کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے, سب سے زیادہ پریشر جو ہے میاں برادران کے اوپر ہے, ان کی فیملی کے اوپر ہے, کیونکہ ان کے وہاں پہ رشتہ داریاں زیادہ ہیں, دوست احباب زیادہ ہیں. الیکشن جو ہے آغاز وہاں سے کیا, لیکن اس پہ وہ کمپرومائز نہیں کریں. ہر صورت میں ہم نے لاہور کو تجاوزات سے پاک کرنا ہے, خوبصورت بنانا ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ اگر وہاں پہ کمپرومائز نہیں کر رہے تو پورے لاہور کے اندر بلکہ پنجاب کے اندر کہیں بھی کمپرومائز نہیں کریں. میں سمجھتا ہوں یہ بڑا مشکل ڈیسیجن تھا. مطلب دیکھیں یہ سیاسی مشکل ڈیسیجن تھا, اگر سیاسی طور پہ دیکھا جائے تو مشکل. اور یہ لیکن اس کی جو فلاح ہے عوام کو ابھی تو مشکل نظر آ رہی ہے, لیکن جب یہ سارے کام ہو جائیں گے تو پھر دیکھیے گا کہ چیزیں بہتر کس طرح سے ہوں گی. ہو سکتا ہے سیاسی طور پہ یہ ان کو نقصان بھی ہو پی ایم ایل این کو, لیکن وہ پرواہ کیے بغیر نہیں سر, اصل میں پروجیکٹس اچھے ہیں نا, کام اچھے ہیں. جب آپ کے کام یہ مکمل ہوں گے نا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ جو یہ وقتی تھوڑی بہت جو تکلیف ہے یہ بعد میں آپ کو پتہ چلے گا کہ نہیں اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے جو سہولت اب آئی ہے. مجھے یہ قریشی صاحب کوئی پرسوں چوتھ دوست ایک بتا رہا تھا کہ وہ میڈم سی ایم نے یہ کہا ہے کہ پہلے ڈیزائن یہ تھا کہ وہ داتا صاحب کی سیڑھیاں جو ہیں داتا دربار کی نظر آتی تھی. اب پتہ نہیں وہ کون سا چوک, انہوں نے بتایا کہ وہاں سے اسٹریٹ دیکھے تو سیڑھیاں نظر آنی چاہیے, درمیان میں جتنی چیزیں یہ ہٹا دینی چاہیے, یہ تجاوزات کی ہوئی ہیں. نہیں میرے علم میں نہیں. اچھا, یہ مطلب ایسا اگر وہ ہے تو دیکھیں یہ بڑا انہوں نے کہا سیدھا کر دے ساری چیزیں. نہیں بڑی چینج ہے جی, بگ چینج ہے, بڑے ڈیسیجنز ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈیسیجنز ہیں یہ ہماری الٹیمیٹ فلاح کے لیے کل کو بڑے سود مند ہونے ہیں. جب ایگزیکیوشن ہو جائے گی پھر آپ دیکھیں گے کہ واقعی کوئی چینج آئی ہے اور واقعی کوئی کام ہوئے. اچھا, میں کچھ عرصہ قبل دیکھ رہا تھا کہ ٹیپا اور ایل ڈی اے کے ساتھ جاپان کی کچھ ٹیمیں بھی آئی ہوئی تھیں. کچھ جاپان کے ساتھ مل کے ہمارا ہوتا ہے. پہلے جائکا کی ایک اسٹڈی تھی, ہم نے اصل میں اسٹڈی بھی بڑی کی ہیں. یہ جو ہمارا یہ جو لائنز ہیں جیسے پرپل لائن ہے, بلو لائن ہے, اورنج لائن ہے, گرین لائن ہے, یہ ساری یلو لائن ہے, ان لائنوں کی
ओरिजिनल जो स्टडी हुई थी 1991 में जापान के साथ मिलकर टीपा ने की थी। ठीक है जी। फिर उसके बाद इसको दोबारा से स्टडी किया गया 2006 में, एक MV एशिया थी जो एक सिस्टर फर्म थी किसी बड़ी फर्म की, तो उस MV एशिया ने इस पर फिर काम किया। फिर जाके 2013-14 में जाके नेस्पाक ने फिर उसका कोरिजेंडम इशू किया। जो आपकी ऑरेंज लाइन थी ना, ये उन्होंने पहले सारी अंडरग्राउंड बनाई थी, वो फिर हमने अपना नेस्पाक ने इसको कहा कि ये सारी अंडरग्राउंड ना करें, इसका सिर्फ ये 2 किलोमीटर का पार्ट है ना जो ये अनारकली वाला है, इसको अंडरग्राउंड कर दें, बाकी सारा आप एड ग्रेड रखें, अदरवाइज बहुत बड़ी तबाही है। ठीक है ना जी। तो इसमें टीपा साथ साथ रहा है हर स्टडी के अंदर। अच्छा, ये आप जो है मुख्तलिफ ममालिक में जाके जो है वहाँ पे इंटरनेशनल मेयार को मद्देनजर रखते हुए ये चीज़ें आप वॉच करते रहते हैं, वहाँ पे स्टडी करते रहते हैं, वहाँ पे उनके साथ राब्ते में रहते हैं? जी ऐसे ही आप देखें ना, जो सिग्नल मैं बता रहा हूँ, ये हम उसी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को अचीव करने जा रहे हैं ना जी। ये चाइना के साथ मिलकर? हाँ जी, नहीं सिग्नल तो मंगवा रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं जर्मन से। ठीक, जर्मन से कर रहे हैं। तो बाकी ये है कि ये सारा जो निज़ाम है, ये सारा हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको थोड़ा सा एक एस्थेटिकली ब्यूटी डेवलप हो, लोगों के लिए आसानी हो। मतलब रात का वक्त है, उसमें वो प्रॉपर उसको एक गाइडलाइन मिलेगी कि पैदल चलने वाले ने कब जाना है, गाड़ी वाले ने कब जाना है, वो लाइट बताएगी, जब रेड हो जाएगी तो गाड़ी रुक जाएगी, जब ग्रीन हो जाएगी गाड़ी निकलेगी, पैदल वाला रुक जाएगा, इस तरह करके। सब आपकी तबाह नाज़क पे नागवार ना गुजरे तो चंद सवाल कर लूं? जी बिल्कुल, खुल के करें। अगर मैं देखें, आपका इदारा तो है ना LDA, अगर मैं नहर की बात करूं तो ये जब आप धर्मपुरा क्रॉस करते हैं, आगे हरबंसपुरा, मुगलपुरा, आगे जलो की तरफ जाते हैं, तो दोनों अतराफ पे कमर्शियल बिल्डिंग्स मेरे नॉलेज में कि मना की गई हैं, लेकिन फिर भी कमर्शियल बिल्डिंग की वहाँ पे शादी हाल भी बन रहे हैं, वहाँ पे प्लाजे भी बन रहे हैं, वहाँ पे कमर्शियल जनाब सारी चीज़ें हो रही हैं वहाँ पे। कैसे मुमकिन है कि आप एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि हम LDA सारी चीज़ वो आप करें, कैसे? ये मैं समझता हूँ, आपका बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। इस पे मैं ये कहूँगा कि एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, एक झटके में आप सारा कुछ ठीक नहीं कर सकते। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, इसमें हमारा जो LDA के जो हमारे मुतल्लिका लोग हैं वो भी अपने तौर पे एफर्ट करते रहते हैं, जो हमसे रिलेट है हम भी करते हैं। इवन फिर भी वो बात आपकी ठीक है कि मसाइल रहते हैं। सुना है जी कि वो इंस्पेक्टर साहिबान जो हैं उनके आशीर्वाद से होता था, लेकिन जब से आपके नए DG ताहिर साहब आए हैं तब से उनके अंदर भी थोड़ी सी हलचल है, खौफ है थोड़ा सा कि पकड़ न ले आके। मतलब अब वो देखें, बात ये है कि जब आपका सरबराह ईमानदार होगा ना तो वो नीचे तक चीज़ ट्रैवल करती है। अब मतलब सरबराह जब आपका ईमानदार है तो फिर नीचे वाले लोग तो डरेंगे ना। जब DG साहब और चीफ इंजीनियर टीपा खुद सिग्नल्स को जाके कपड़ा मार के साफ करके दिखाएंगे, जी नहीं फिर डेफिनेटली नहीं इंशाल्लाह आगे ख्याल करना पड़ेगा। जी ऐसे ही। अच्छा, अब एक फिरोजपुर रोड पे पिछले दिन इशू हुआ जिसकी वजह से कुछ जो है लोगों को खिलाफ कोई कार्रवाई भी की गई, लेकिन बात तो ठीक थी वो कि वो एक देखिए वो एक चीज़ एक तरफ बात बिल्कुल इन्होंने परफेक्ट बनाया कि फिरोजपुर रोड के ऊपर बाइक्स जो है उनका लोड ज़्यादा था, उसकी वजह से एक्सीडेंट भी होते थे, ट्रैफिक की रवानी में भी होता था। उन्होंने बड़ी अच्छा ये फैसला डिसीजन लिया गवर्नमेंट ने कि LDA के साथ मिलके कि हम एक लेन ऐसी बना दें जिसको ग्रीन सब्ज़ कोई भी रंग दे के उसको बना दें कि ये जनाब सब्ज़ लाइन जो है इसमें सिर्फ बाइक्स जाएंगी, ऊपर नहीं आएंगी, और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि ट्रैफिक की रवानी। लेकिन वो मतलब दुल्हन जो है वो सजी और बारिश आई और सारी वो ऊपर से रंग ले गया, दुल्हन में असल निकला। मैं इस पे सबमिट करता हूँ, आपका डोगर साहब इस तरह है कि हम भी ये चाह रहे थे, गवर्नमेंट भी चाह रही थी कि इंटरनेशनल चीज़ें यहाँ पे आएँ और इंटरनेशनल लेवल के कुछ जो हमारी मेजर सड़कें हैं ना वो इंटरनेशनल लेवल पे चली जाएँ। अब उसके जो इंटरनेशनल लेवल्स हैं उसमें ये है कि साइकिलिंग लेन भी होनी चाहिए, कोई पार्क अपना पैदल चलने के रास्ते भी होने चाहिए। हमारे पास जो सड़कें हैं ना वो तंग नहीं है, हमारी सड़कें बड़ी खुली हैं। सर इतनी है, इंटरनेशनल भी इतनी है, लेकिन वहाँ पे डिसिप्लिन है, ठीक है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा इशू कुछ हमारे एंड पे था, कुछ ये है कि हमारी जो नफ्सियात है वो ये है कि हम एनफोर्स नहीं करते अपने आप को ना। मिसाल के तौर पर मैं बाइक पे जा रहा हूँ, हमने वो बनाया है, करबर बना दिया। अब अगर हम थोड़ा सा यूँ समझे कि हमारी साइकी ये ना होती कि करबर की ज़रूरत नहीं है तो करबर बनाने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है ना जी। अब हमारी मजबूरी ये है कि हम डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते,
हमारी कोशिश होती है कि हम बस सीधे जा रहे हैं, इधर से इधर ना हल्का सा टेढ़ा ना होना पड़े, तो इसलिए वो कर्वर बनाया। अब वो जो पेंट वाला जो इशू है ना, जो मतलब आप पूछना चाह रहे हैं, वो एक ये असल में किया था हमने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे कि इसको एक बार लेके चलते हैं। पेंट का एरिया था बहुत ज़्यादा, ठीक है ना जी, लेंथ बहुत ज़्यादा थी, तो जितना टाइम मैं समझता तो मिलना चाहिए था ना, ये एक लेयर के बाद दूसरी लेयर को, फिर तीसरी लेयर को, वो प्रॉपर जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो टाइम प्रॉपर नहीं मिल सका। आपका ताल्लुक गांव से है या शहर से? जी मेरा ताल्लुक गांव से। कुरैश साहब सर, बात पता है क्या है, पायलट प्रोजेक्ट तो है। अच्छा, मैं कोई वो तनकीद नहीं कर रहा, वो पिंडा जो ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਮਾਈਆਂ, ਉਹ ਪੋਚੇ ਛੋਚੇ ਮਾਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੰਗ ਰੰਗ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਯਾਰ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ तो कोई 5-10 बारिश, मतलब वो तो पहली बारिश में नहीं, वो बेबी को पोछा छोटा पोछ लेने के तजर्बा। चले खैर कोई नहीं, ये पायलट था, उसमें बहुत सारी चीजें सीखी होंगी आप लोगों ने भी। और ये देखिए एक चीज अच्छी थी उसमें, सिर्फ ये नहीं है कि हमें मतलब मैं आके सिर्फ नेगेटिविटी फैलाता रहूं, उसमें एक चीज अच्छी ये थी कि अगर इंटरनेशनल मेयार को देखा जाए तो वहां पे सड़कें इतनी हैं, उन्होंने डिसिप्लिन से, अगर ये एक रिक्शे वाला है तो यहाँ पे जा रहा है, बाइक वाला यहाँ पे जा रहा है, साइकिल वाला यहाँ पे जा रहा है, अगर यहाँ पे डिसिप्लिन कर ले। मुझे चांस मिला अमेरिका जाने का। अच्छा, मैं बेसिकली तो हमारा इस्लाम ये चीजें सारी सिखाता है हमें। मैंने वहां पे देखा कि लोगों ने तरक्की कैसे की। यकीन कीजिए कि एक ही वजह थी कि वो डिसिप्लिन थे, ईमानदार थे। वहां पे ये था कि वो रोड क्रॉस करना है, अगर मतलब हमने पैदल करना है तो उसके लिए सिग्नल है, साइकिल वाले के लग लिए, गाड़ी के लिए अलग है। मतलब जब हम भी इस पे चले जाएंगे तो रोड तो इतने ही है, उनके भी मैंने कोई बड़े नहीं रोड देखे कि इससे बहुत बड़े बड़े इतने डिसिप्लिन था, डिसिप्लिन। तो अगर यहाँ पे देखिए अभी जैसे आप ट्रैफिक की बात कर रहे थे, तो इन्होंने जैसे गलत पार्किंग पे वो पता नहीं 2000 फाइन और वो इस तरह की है, इस तरह की रूल। देखिए मोटरवे हमारे सामने एग्जांपल है जहाँ पे कंप्रोमाइज नहीं करते तो लोग वहाँ पे आज भी ठीक चल रहा है, डिसिप्लिन है ना जी, वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहा है। देखिए जहाँ पे सजा और जज़ा का अमल शुरू हो जाए तो खुद ब खुद सीधा हो जाता है। ठीक, जैसे अभी आपने कहा कि आप कंप्रोमाइज नहीं कर रहे, सिफारिशें भी आती हैं, अल्लाह करे आप ऐसे कर जाएं, ऐसे ही ऐसे तो हालात ठीक हो जाएंगे। देखिए मैं बताता हूँ कि इंसान का काम है कोशिश करना, ईमानदारी के साथ कोशिश कर सकते हैं। कुछ छोटी मोटी फिर भी गलती गुताई होती है बंदे से, इंसान है, इंसान से वो एक अलग है, लेकिन हम कोशिश पूरी करते हैं कि जी कि मैक्सिमम जो है चीज़ों को बेहतर करके चले। अल्लाह ताला खैर। लाहौर के अवाम यकीन रखे कि आप जी इंशाल्लाह, क्यों नहीं, बिल्कुल बिल्कुल रखे जी, हम पूरा जोर लगा रहे हैं अपनी चीज़ों को बेहतर करने में। प्रेशर पूछ रहे तो बता दें हम। नहीं कोई प्रेशर ना कोई प्रेशर, कोई कहीं से धमकी आ जाए, नहीं कोई ऐसा कोई मसला ही नहीं है, वो काम ही ऐसा नहीं है धमकी वाला, सीधा काम, सीधा सा काम। तो अभी क्या आप समझते हैं कि लाहौर के अंदर इसको मजीद बेहतर करने के लिए कि इन चीज़ों की ज़रूरत है कि वहाँ पे आपके डीजी साहब या मैडम सीएम साहिबा उस पर गौर करें तो लाहौर मजीद ट्रैफिक की रवानी में बेहतर हो सकता है? देखिए इस पे पहले ऑलरेडी जो आप कह रहे हैं ना काम चल रहा है ट्रैफिक की रवानी के लिए, मैं समझता हूँ सबसे पहला जो कदम है ना वो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेहतर करनी चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूट्स जो हैं, जैसे पर्पल लाइन है, ब्लू लाइन है, इन लाइनों को एग्जीक्यूट जब हो जाएंगी ना, होती हैं, तो इससे फिर आपका जो बर्डन है ना एट ग्रेड सड़क के ऊपर वो कम हो जाएगा। कम्यूटर्स कोशिश फिर करेंगे। आप तनकीद शुरू करते हैं आवाम, मैं मतलब आपकी आवाम बात कर रहा हूँ। देखिए मेट्रो में जिन लोगों ने गजुमता से शाहदरे जाना है वो क्या आते हैं, अगर उन्होंने काने से आना है, कसूर से आना है, वो गाड़ी वहाँ पार्क करते हैं पार्किंग में, वहाँ पे मेट्रो में बैठते हैं वो जनाब। उन्होंने अगर 1 घंटे में सफर करना है वो 25 मिनट में वहाँ पे पहुँच जाते हैं। और इन ट्रेन का वो जनाब वो अली आबाद रजा ठोकर से आगे अलीआबाद वहाँ पे वो गाड़ी पार्क करते हैं, वो जनाब पता नहीं किधर किधर वो कचहरी भी आते हैं, सारा आते हैं। अगर वो आप करते हैं फिर तो आप वहाँ भी जान नहीं छोड़ते, तनकीद करना शुरू करते। तनकीद तो रह नहीं है सर, तनकीद तो हुसन है वैसे भी। अभी सीएम साहब ने वो ग्रीन बस सर्विस वो कितनी बसें मंगवाई वो चलाई है, फिर भी आप मतलब वो भी चीज़ें पसंद नहीं ना आपको? नहीं देखें, ऐसा ऐसा मैं समझता हूँ चीज़ें बेहतर होनी चाहिए और हो रही हैं जैसे ये ग्रीन बस चल गई, इस तरह से आगे को पर्पल लाइन आ जाएगी, फिर को ब्लू लाइन आ जाएगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जितनी मजबूत होगी उतना आपका जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, उतना आपका ये जो ट्रैफिक का जो मसाइल है वो कम होंगे। ट्रैफिक सिस्टम आपका ट्रांसपोर्ट का सिस्टम बेहतर होगा और उसमें फिर ये होगा कि लोग, और फिर एक और भी होगा उसमें आपका जो ये जो धुआं गाड़ियाँ छोड़ती हैं, स्मोक डेवलप होती है, वो भी मसाइल काफ़ी हद तक उस पर हल निकलेगा। बिल्कुल सही है। अच्छा अब ये है कि जो तजावज़ात कर रहे हैं, मोहब्बत भरा पैगाम उनको देना है और साथ ये जो बेराह रवी बेहंगम ट्रैफिक, को इधर से बाइक कर दी, इधर से गाड़ी ले आया, इधर से रिक्शा ले आया, और मतलब रोड्स तो ऐसे ही है कि डिसिप्लिन में चले, उनके लिए एक मोहब्बत भरा पैगाम तो दे दें। बस देखिए मैं अपना डोगर साहब ये है कि
میری عوام، ہماری جو عوام ہے وہ اس میں کوئی دو رائے نہیں، مطلب جس طرح میں بھی ایک شہری ہوں، ہم اپنے طور پہ سارے لوگ بہتر کرتے ہیں، لیکن کچھ بیہیویئر ہے جو موقع کے حساب سے یکدم مطلب عدم برداشت ہے یا جلدی ہے، ہیسٹ ہے ہمارے رویوں کے اندر کہ جلدی سے ہم ادھر سے ادھر نکل جائیں، ادھر سے ادھر نکل جائیں۔ اگر عدم برداشت پہ اور جلد بازی پہ، ہیسٹ پہ تھوڑا سا ہم کنٹرول کریں، قابو پا لیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے کافی سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ ایون میں دیکھتا ہوں کہ آپ کے یہاں فرض کہ دو گاڑی والے ٹکرا گئے ہیں، وہ پھر لڑائی شروع کر دیتے ہیں، تو یہ صرف کیا ہے، لمبی لائنیں لگ جاتی ہیں پیچھے، لمبی لائنیں لگ جاتی ہیں، یہ وہی ہے۔ اچھا ہونا یہ چاہیے کہ ان گاڑیوں کو سائڈ پہ اگر ہو سکتی ہیں سائڈ پہ کر کے گاڑی ٹریفک چلتی رہے، آپس میں بات چیت کر کے اس کو حل کریں، یا ٹریفک کو پولیس کو بلا لیں، جو بھی ہوتا ہے۔ تو اس میں دو ہی چیزیں ہیں جی، ایک عدم برداشت اور دوسرا ہیسٹ۔ اس سے میں سمجھتا ہوں بہت خوبصورت پیغام جناب اقرار حسین قریشی صاحب، چیف انجینئر ٹیپا، ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے، اور آج کا پروگرام بڑا انفارمیٹو اس حوالے سے تھا کہ لاہور شہر کے اندر تجاوزات کی بھرمار تھی۔ دیکھیں وہاں پہ میڈم محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ بغیر کسی پریشر کے انہوں نے بہت ساری، ڈیفینیٹلی ان کو بھی پولیٹیکل پارٹی ہے، بہت سارے ان کے ایم این اے ایم پیز وہاں سے ووٹ لے کے آئے، وہ ڈیفینیٹلی جاتے ہوں گے کہ ہماری عوام ہمارے پاس آتی ہے، لیکن انہوں نے بالکل کمپرومائز نہیں کیا۔ انہوں نے کہا جی ہم نے تجاوزات سے جو غیر قانونی بیٹھا ہے وہ غیر قانونی ہے، وہ صاف کرے۔ اسی طرح جس طرح ابھی قریشی صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم نئی بلڈنگز جو ہیں، اللہ کرے اگر ایسے ہو جائے کہ وہ پارکنگ کے بغیر ہم بالکل اس کو پاس ہی نہیں کر رہے، اس کو ہم اجازت ہی نہیں دے رہے، باقی پرانی تو چلے بعد کی بات ہے نا، ان کو کیا کرنا ہے کیا نہیں، اگر اس پہ عمل ہو جائے تو یہ روڈز اتنی ہیں پوری دنیا کے اندر، ڈسپلن کی ضرورت ہے، یہاں پہ ایمانداری سے کام کرنے کی ضرورت ہے، تو یقین کیجئے یہ لاہور خوبصورت ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں، میں نے اگزامپل ایسی نہیں سنی کہ دیہاتوں کے اندر جھاڑو پکڑے ہوئے ہیں، وہاں پہ نالیاں صاف کر رہے ہیں، اور یہ بھی جو میڈم سی ایم صاحبہ نیا پروجیکٹ لے کے آ رہی ہیں کہ وہاں پہ وہ جناب جوہر جو ہیں گاؤں کے اندر لاہور شہر کو کیسے خوبصورت بنانا ہے، شہروں کو کیسے پنجاب کے خوبصورت بنانا ہے، میرے خیال یہ بڑے اچھے پروجیکٹ ہیں، لیکن یہاں پہ حکومت کا، اداروں کا، جیسے ٹیپا ہے یہ کام کر رہا ہے، ایل ڈی یہ کام کر رہا ہے، لیکن سب ہم خود کہتے ہیں میں فرشتہ ہوں، میں نے یہ نہیں دیکھنا کہ اگلا بندہ کیا کہا، ہمارا تنقید تو ہم کر دیتے ہیں، لیکن اگر تنقید برائے تنقید کرنے کے بجائے تنقید برائے اصلاح کریں تو بہت سارے کام جو ہے بہتر ہو جاتے ہیں۔ جب ہم اپنا رات کو بیٹھ کے نا، اگر ہم اپنا وہ محاسبہ کر لیں کہ ہم نے کیا کیا، ہم نے کیا کام کرنا چاہیے تھا۔ گورنمنٹ دیکھیں یہ ایک بڑی وائلیشن ہے کہ حکومت کی یا جو بھی آپ کے اس وقت گورنمنٹ ہے اس کی آپ احکامات کی خلاف ورزی کر رہی ہیں، تو اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ حکمران کی بات کو ماننا بھی ثواب ہے کہ آپ اس کے احکامات، ہاں غلط ہے تو پھر وہ ایک بغاوت کا الگ چیز آتی ہے، وہ ایک الگ اس میں اسلام نے رکھی ہوئی ہے۔ تو ہم یہ میرے خیال میں جب ہم مسائل ہیں اس میں صرف بے راہ روی ہے، اگر ہم ڈسپلن پہ عمل کر لیں، اپنے اسلام کے مطابق زندگی گزار لیں، اپنے جو حکمران ہیں ان کے مطابق ان کو لے کے چلیں، اگر وہ غلط ہیں تو ہم تنقید برائے اصلاح کریں، تو میرے خیال بہتری ہو سکتی ہے۔ اور ان کو بھی عدم برداشت دونوں میں ہونی چاہیے، نہ حکومت میں ہونی چاہیے، نہ اداروں میں ہونی چاہیے، نہ عوام میں ہونی چاہیے۔ جب مل جل کے کریں گے تو جس طرح پاکستان اب ترقی کی راہ پہ گامزن ہے، انشاءاللہ تعالی اس کو ترقی پذیر سے ترقی یافتہ میں چینج کرنے میں کوئی نہیں روک سکتا۔ اس کے ساتھ ہی آج تک کے پروگرام سے اپنے میزبان اعجاز ڈوگر کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔